Good morning students. Today we will solve exercise 5.3 question number 7 to 10 and last period we will solve the exercise 5.3 question 1 to 6. Last period में 1 to 6 किया था and today we will solve the exercise 5.3 7 to 10 and today has complete the chapter. आपको आज ये chapter complete finish हो जाएगा. Next video will be start the new chapter and first is the question number 7. Find the sum of all the numbers divided by the 3 between the 1 to thousands and first you find the AP. First you find which AP divide by 3 and last period I will explain the what is the AP. AP the divide by 3 means the 3 stable and the 1 to 1000. So AP start the 1 2 3 4 and divide by 3 means the 3 stable either 3 6 9 12 up to the 1000. The 1000 before is number is the divide by 3 is the 999 is the AP. But in the question के odd number find the odd number. The odd number means which number is the odd number? The number which not divided by 2 is called the odd number. Then which number is the AP in the divide by 3 and odd number? कौन सा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं लेकिन बट इज द ओड नंबर होना चाहिए, तो वो AP क्या हो जाएगी आपकी 3 9 15 अप टू द 999 इज कॉल्ड द AP. एंड यू फाइंड द सम ऑफ नंबर्स. सम्स फाइंड करना है यानी आपको क्या फाइंड करना है SL. तो फर्स्ट यू फाइंड द n. फर्स्ट क्या फाइंड करना पड़ेगा SL इज द फॉर्मूला इज द SN फॉर्मूला इज द n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d is your SN formula and find you the first you the n a and d common difference. First term is the a and find that common d and n. The first a is the first term is the 3, d is the common difference a2 minus a1 is equal to 9 minus 3 equal to 6 is the d is the common difference. And first to the an equal to a plus n minus 1 d and find the n term. इसमें से a और d से आपको फाइंड द n टर्म निकालना है. an टर्म इज द 999 इज द लास्ट टर्म इज कॉल्ड द an 999. a इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 एंड d इज द 6. फर्स्ट 999 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 6 993 and 996 equal to n minus 1 upon multiply by 6 and divide 906 upon 6 equal to n minus 1. First quotation 1 जा 6 36 6 166 equal to n minus 1. तो n is equal to क्या है 167 is called the n term. And first find the SN. अब क्या फाइंड करना है आपको SN इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d. n इज प्लेस वैल्यू इज 167 अपॉन 2. फर्स्ट टर्म इज द 3 प्लस n टर्म इज द 167 अपॉन 167 minus 1 and d is equal to 6. Now 167 upon 2 3 is 6 plus 167 minus 1 166 multiply by 6 167 upon 2 6 plus 6 is 36 carry 3 3 is 36 9 36 3 carry 3 3 and 996 167 मल्टीप्लाई अपॉन 2 इक्वल टू 9 एंड 6 से 2 से प्लस करोगे 6 6 12 कैरी 1 कैरी 1 ने 2 से इसको कट करोगे 501 167 मल्टीप्लाई बाय 501 डू द मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर. आपको क्या आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो इज योर आंसर. अंडरस्टूड. एक्सप्लेन वापस एक्सप्लेन द ऑल द नंबर्स विद द डिवाइड बाय 3. आपको 3 से डिवाइड करना है अप टू द 1 to 1000. तो 1 to 1000 में AP क्या होगा पहले 3 का डिवाइड बाय 3 यानी 3 टेबल 3 6 9 12 13 एंड लास्ट टाइम इज द 999. अब इसमें आपको ये फाइंड करना है कि 3 से भी डिजिबल होना चाहिए और ओड नंबर भी होना चाहिए. तो विच AP इज द 3 9 15 3 9 15 ओड नंबर भी हो गए और 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड भी हो जाएगा और लास्ट टर्म इज द 999. एंड फर्स्ट यू फाइंड द SN. सम पूछा है तो SN फॉर्मूला इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d. तो इसमें से आपको फर्स्ट a टर्म a निकल जाएगा d कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 an से
लास्ट टर्म इज इक्वल टू 999 एंड ए इक्वल टू 3 n माइनस 1 डी। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी n की वैल्यू निकल जाएगी 167 आप Sn के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे एंड यू गेट द आंसर। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Now question number 8. First term of arithmetic progress is the 8. First term दिया हुआ है question number 8. First term दिया हुआ है आपको a. First term is equal to 8. Now second nth term is the 33. Nth terms यानी n equal to not n is the nth term means the an. an is equal to कितना दिया हुआ है आपको 33. Now first and sum of n term यानी S33 फर्स्ट n Sn इक्वल टू 123 मीन्स क्या हुआ S33 इक्वल टू 123। आपको ये दिया हुआ है सॉरी Sn दिया हुआ है 123 देन Sn इक्वल टू 123 फाइंड द n एंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड क्या करना है आपको n एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको फाइंड करना है। अब देखो a दिया हुआ है d फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे an। n में n भी नहीं है d भी नहीं है तो आपको एक फॉर्मूला मैंने Sn का और बताया था। Sn इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 a प्लस l। l मीन्स द लास्ट टर्म an। एक ये फॉर्मूला था Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करोगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस L last term Sn is equal to 123 and we will find n अपने को find करना है। a is the first term equal to 8 and last term is equal to 33. Now 123 equal to n upon 2 33 plus 8 43 और 8 11 41। अब 2 का इधर 123 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 41 इक्वल टू n। 41 3 तो n इक्वल टू 2 इंटू 3 n इक्वल टू 6 ये आपको मिल गया। एंड नाउ फाइंड द कॉमन डिफरेंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an इक्वल टू विच नंबर इज द 33 फर्स्ट टर्म इक्वल टू 8 n value is the 6 minus 1 and d we will find। so 33 minus 8 equal to 6 minus 1 5d 33 minus 8 25 equal to 5d। तो d equal to 25 upon 5 quotation is the 5 तो d is equal to 5। understood? again repeat the first term दिया हुआ 8 an यानी लास्ट टर्म दिया हुआ and 33 Sn 123 find the n and the कॉमन डिफरेंस। ये आपको फाइंड करना है। फर्स्ट यू फाइंड द राइट द एंट्री ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया उसकी एंट्री भी आपको करनी है कि बोर्ड एग्जाम में इस एंट्री के भी हाफ मार्क्स मिलते हैं। तो फर्स्ट यू एंट्री द क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या आपको पूछा है वो पूरा आपको एवरी क्वेश्चन के अंदर आपको ये लिखना है। I will not again repeat the first you enter the question entry the question एंट्री में वाह में रिपीट नहीं करने वाली है। आपको पहले जितने भी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको एंट्री करनी है कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या आपको पूछा है। नाउ अब आपको Sn से n अपॉन 2 a प्लस एल इस पर से अब देखो यहाँ पे कैसे मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया क्योंकि अगर आपके पास ये फॉर्मूला एक ये है Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। अब ये फॉर्मूला इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि आपके पास ना d है ना n है ये दोनों ही नहीं है। तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। a यानी फर्स्ट टर्म एल इज द लास्ट टर्म। इसके अंदर वैल्यू पुट करो Sn इक्वल टू 123 n इक्वल टू 2 a की वैल्यू इज द 8 एंड l की वैल्यू इज द 33 प्लस 8 41। 2 का यहाँ पे डिवाइड है दैट साइड इज द मल्टीप्लाई एंड 41 द मल्टीप्लाई तो देन दैट साइड इज द डिवाइड। कटिशन करोगे एंड वैल्यू इज द 6 और an इक्वल टू अब n निकल के आपको क्या फाइंड करना है d कॉमन डिफरेंस। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d 33 8 n माइनस 1 एंड d
33 लेफ्ट 8 को लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो क्या आएगा -8 इक्वल टू 58, डी का 5 का डिवाइड करोगे तो डी इज इक्वल टू 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ए सम ऑफ द 280 रुपीज़ इज फॉर द गिवन द 4 प्राइस। 4 प्राइस है, उसमें 280 सम ऑफ है, यानी क्या दिया हुआ है आपको एस एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 280 रुपीज़। 9 क्वेश्चन। एन इज इक्वल टू 4 प्राइस है, उनका टोटल कितना दिया हुआ है 280 रुपीज़। देन इच प्राइस इज द 20 लेस, इच प्राइस है 20, जितने भी प्राइस है उसमें से 20 लेस हो रहा है, इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। लेस है तो आंसर क्या हो जाएगा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा -20। देन इज द पीटीकेस प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ इच प्राइस। सब प्राइस की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, एस एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ, लास्ट टर्म भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन डी दिया हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, फर्स्ट टर्म एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। क्यों इसमें ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसमें एल इक्वल टू लास्ट टर्म आपको पास इज़ नॉट फाइंड, आप इसके पास है नहीं, तो आप क्या यूज़ करोगे, पहले ए एन इक्वल टू एन, या तो ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करो या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप। ये पे क्या हो जाएगा 280 इक्वल टू एन की प्लेस पे 4/2, ए आपको पता नहीं है 2a, एन की प्लेस पे 4 - 1 एंड डी की प्लेस वैल्यू इज द -20। 4 से 2 कट हो जाएगा, 280 इक्वल टू 2a प्लस 4 - 1 3 -20, 2 डिवाइड 280 अपॉन 2 इक्वल टू 2a, 320 इज -60, कटेशन 140 इक्वल टू 2a माइनस 60 को लेफ्ट साइड लेके जाओ तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 प्लस 60, 2a इक्वल टू 200, a वैल्यू इज इक्वल टू 100, यानी फर्स्ट प्राइस कितने रुपीज़ की हुई 100 की। तो यू वेल द आंसर क्या बनेगा आपका AP। फर्स्ट प्राइस कितनी हुई 100 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या दिया लेस द 20 रुपीज़ इस प्राइस, मतलब 20 में से हर में से 20 रुपीज़ क्या हुआ लेस करना है, तो 100 - 20 इक्वल टू 80, 80 - 20 60, 60 - 20 इज द 40 इज योर आंसर। अंडरस्टूड। अगेन रिपीट, एस एन इधर रुपीज़ दिया है 280 रुपीज़, एन इक्वल टू 4 प्राइस है, उनका टोटल उसने कितना दिया है 280 रुपीज़ का, डी इक्वल टू 20, यानी जितने भी प्राइस है उसमें से 20 रुपये उसने क्या कर रहा है लेस कर रहा है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा -20, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d, 220 4/2 2a, एन की प्लेस पे 4 - 1 और डी इक्वल टू -20, इसकी वैल्यू पुट करोगे इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। Then complete your chapter today and next period will be start the new chapters and do the all the exercise complete and do the example in fair notebook। आपको example और exercise दोनों fair notebook में करना है। तो example is the 30 marks in example in the board exam में 30 marks के आपके example आते हैं, तो we should be the example all the chapter। Now question number 10. A manufacturer of TV set the producer 600 set in the third year में 600 सेट जा रहा है, यानी क्या हुआ A3 जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ उस वैसे उससे इसकी एंट्री A3 इक्वल टू 600। नाउ 700 सेट इन द 7th ईयर, यानी A7 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 700। Assume that is the producer increase the uniform by the fixed number every year, then find the first year, यानी फर्स्ट ईयर फाइंड करना मीन्स क्या फाइंड करना है A। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में प्रोड्यूस इन द 10th ईयर मीन्स A10 एंड थर्ड इज द टोटल प्रोडक्ट्स यानी S7, टोटल प्रोडक्ट्स इन द फर्स्ट 7 ईयर, 7 ईयर का टोटल आपको फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन
फर्स्ट यू A3 एंड A7, तो आप क्या करोगे पहले इस पे से सॉल्यूशन A3 इक्वल टू 600, A3 मीन्स और A7 इक्वल टू 700 यू हैव गिवन आपके पास ये, तो A3 का क्या लिखोगे A प्लस A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 600 और A7 इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू 700. डू द एलिमिनेशन मेथड माइनस 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 फर्स्ट कट 2 माइनस 6 माइनस 4D इक्वल टू माइनस 100 माइनस माइनस कट, तो D इक्वल टू 100 अपॉन 4 25, कॉमन डिफरेंस का हुआ आपका 25. A3 इक्वल टू 600, A7 इक्वल टू 700, तो A3 इक्वल टू A प्लस 2D और A7 इक्वल टू A प्लस 6D. सॉल्व द एलिमिनेशन मेथड D इक्वल टू 25. नाउ A प्लस 2D, पुट द वैल्यू D इक्वल टू 25 इन इक्वेशंस फर्स्ट इक्वल टू 600, तो A प्लस 2 इंटू 25 इक्वल टू 600, A प्लस 50 इक्वल टू 600, तो A इक्वल टू 600 माइनस 50, A इक्वल टू 550 इज द फर्स्ट आंसर. फर्स्ट टर्म पूछा है A, हियर इज द फर्स्ट आंसर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द A10. A10 मीन्स A प्लस 9D. A की प्लेस पे क्या आ जाएगा 550 प्लस 9D की प्लेस पे 25. ये सॉल्व कर लेना 550 प्लस 225 577. Now S7 इक्वल टू फॉर्मूला इज द A अपॉन 2. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या फाइंड करना है S7 इक्वल टू N अपॉन 2, AN इक्वल टू N अपॉन 2 2A प्लस N माइनस 1D. S7 7 अपॉन 2, A की प्लेस पे क्या आ जाएगा 550 प्लस N की प्लेस पे 7 माइनस 1 and D place value is the 25. 7 upon 2 6 into 50, 7 upon 2 प्लस 150. पहले प्लस करके इसको डिवाइड करोगे, यू गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा. अंडरस्टूड? डू योर सेल्फ. ये लास्ट वाला अपने आप सॉल्व करोगे. अगेन रिपीट, A3 दिया 600, A7 इक्वल टू 700, A फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है और S7 फाइंड करना है. तो A3 इक्वल टू 600, A7 इक्वल टू 700, A3 इक्वल टू A प्लस 2D और A7 इक्वल टू A प्लस 6D. एलिमिनेशन मेथड से D फाइंड करोगे, D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू फाइंड करोगे और A की वैल्यू फाइंड करके A10 इक्वल टू A प्लस 9D, A10 निकाल लेना और SN फाइंड कर लेना. अंडरस्टूड? टुडे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. योर होमवर्क इज complete exercise 5.3 in prayer notebook. 5.3 जिसने कंप्लीट नहीं करी है वो पूरी कंप्लीट करेगा एंड सेंड मी. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.